Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is a follow-up lecture from our previous one, which was pertinent to rule of law, where we studied the Nuremberg trial, the basics of rule of law, what rule of law actually is. So today, students, we are going to study academic views on rule of law. The first question that should be coming to your mind is, why is academic opinion important? Not just for rule of law while studying rule of law, but generally while studying law. So even in future, if you're going to study LLB honors or any legal subjects, you are going to encounter some jurists, some academics who are going to present their own particular point of view on any point of law. Why is that very important? आप screen पे देख सकते हैं students, I have listed down few points which depicts why studying academic opinion is important while understanding any legal concept. First, diverse perspective. It gives you a diverse perspective on one particular topic. एक jurist एक बात कहता है, दूसरा उसके antagonist अपना point of view present करता है. Henceforth आपके पास एक diverse perspective आ जाता है, which is very important while presenting your own critical analysis, which is the second very point. तीसरा point है clarification of concepts. If you're going to study one particular jurist या फिर one particular academic on any point of law, आपके पास एक महदूद knowledge रहेगा. Your knowledge is going to be capped at some end. However, if you study multiple academics, वो अपना different point of view present करेंगे, आपका knowledge बढ़ेगा, आपका legal acumen बढ़ेगा pertinent to any subject. Fourth, we have historical context. एक चीज की jurisprudence किस तरह से develop होती है, history में वो कैसी समझी जाती थी, आज वो कैसी समझी जाती है. For instance, rule of law in 12th century, when Magna Carta came, rule of law was very different. It came around in 13th century. Okay, it was different. Today, the definition of rule of law is very different. क्यों? क्योंकि society evolve हो रही है. UK की society एक time पे predominantly old white males से constitute करती थी. आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो एक metropolitan area बन गया हुआ है. वहाँ पे different ethnic groups, different culture के लोग वहाँ पे आके बसते हैं. And both historical context is very important. Finally, it promotes a debate. आप जब different views को analyze करते हैं, different views present करना in itself is a form of a debate. एक academic अपना कोई opinion देता है, दूसरा academic आके बोलता है कि भाई इनका ये point गलत है, मैं बताता हूँ सही क्या होता है. Henceforth एक debate चलती है. Next up, students, we have to learn who writes academic opinions. Legal scholars, legal researchers, judges, lawyers and students. जो judgments होती हैं, अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ, students, have you ever encountered reading judgments, उसमें आप देखेंगे कि judges अपना एक particular point of view present करते हैं किसी ना किसी legal point के ऊपर. Be it rule of law, be it क्या कहते हैं supremacy of the legislature or the parliament, judges का अपना एक view होता है, या be it separation of powers जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह. So judges अगर अपना view present कर रहे होते हैं, उनका view भी एक academic opinion constitute करता है. उसके अलावा नामवर वकला, lawyers जो कि senior lawyers होते हैं, उनके आप लेते हैं, legal academics होते हैं जो हमारी universities में होते हैं, and also students अपना research paper लिखते हैं अपने final year के अंदर आके, वो भी उसके अंदर एक कोई ना कोई legal अपना opinion present कर रहे होते हैं. अगर बहुत ही अच्छा लिखा गया हो तो वो एक credible opinion समझा जाता है. Furthermore, आज हम जो 3 jurists के बारे में पढ़ने लगे हैं, उनके रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को हम समझने लगे हैं. द फर्स्ट वन जो बड़े नाम पर मशहूर है जमाना, एल्बर्ट वेन डाइसी, ऑल्सो नोन एज A.V. डाइसी. सेकेंड इज प्रोफेसर वॉन हैविक एंड थर्ड इज जोसेफ रास. वॉन हैविक से शायद आपका इतना ताल्लुक फ्यूचर में ना रहे, मगर A.V. डाइसी एंड जोसेफ रास से आप आगे जाके जब आप लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे, आप तब भी इनको पढ़ेंगे. So students, let's take a look on our first academic, Professor Dicey's view on rule of law. अगर आपने किसी academic का opinion आपने present करना है, उनके opinion को आपने अगर पढ़ना है, सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, आपने उस academic को जानना होता है कि वो है कौन. So A.V. Dicey, जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं students,
A.V. Dicey, Albert Van Dicey, was a British jurist and professor of constitutional law at Oxford University. That means, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि प्रोफेसर्स एंड बहुत बड़े जो लॉयर्स होते हैं वो उनका ओपिनियन पढ़ते हैं एकेडमिक. ये A.V. डाइसी उन्हीं में से एक थे. ये ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के. एंड आज हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं ऑफ रूल ऑफ लॉ. Students, the first point you can see on the screen is the best known explanation of rule of law was given by Dicey in 19th century. According to Dicey, rule of law distinguished English law from the laws of other countries in Europe. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर टाइम पे एकेडमिक ओपिनियन इवॉल्व कर रहा होता है. आज जो डेफिनेशन है रूल ऑफ लॉ की जो हम पढ़ेंगे, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन दैट व्हिच एग्जिस्टेड 4 to 5 centuries ago. So according to Sir A.V. Dicey, rule of law purely English concept था. It was purely based upon English constitution और उनके मुताबिक वो इतने एडवांस थे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज इस कॉन्सेप्ट को अभी तक ग्रास्प भी नहीं कर पाए थे, which at that particular time arguably could be true. He held that there were 3 elements that created rule of law. Sir A.V. Dicey के 3 points हैं which you have to understand very well. First, an absence of arbitrary powers on the part of the state. Students, आपने मेरे शुरू के lectures अगर आपने playlist में अभी आपने नहीं देखे, I urge you कि आप जाके वो देखें. At Slate के आप जाएंगे, Slate के YouTube पे जाएंगे, you have to click on the playlist. Playlist में आपको A-levels law का आएगा. Chronological order में आपने जाके मेरे आपने lectures सारे देखने हैं in order to understand how we are building up concepts. So हमने पहले lecture में हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट की पावर, पार्लियामेंट यानी गवर्नमेंट की पावर, किसी भी गवर्नमेंट की पावर को कैप लगाता है लॉ. टू बी मोर स्पेसिफिक, आज हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ लॉ. स्टेट की पावर और सिटीजन्स के राइट्स के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, एंड इस बैलेंस का नाम है रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ स्टेट की पावर्स को कम करता है और सिटीजन्स के राइट्स को एक तरह से इफेक्टिव लगाता है, उनको ज्यादा बढ़ाता है. Furthermore, equality before the law. No person is above the law. Law must treat rich and poor equal. हमने क्लास में हमने स्टूडेंट्स हमने देखा था कि it was said कि a rule of law is just like it's like a law is like a web जिसमें अमीर निकल जाता है जिससे, लेकिन उसमें गरीब फंस जाता है. So rule of law इस चीज को बहुत, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत फ्राउन अपॉन करता है एंड कहता है कि law must treat each and everyone equally, rich and poor alike. जिसका जो social status हो, जिसका कुछ भी हो, he must be treated equally as the other citizens. So equality before the law. Third is supremacy of the ordinary law. Ordinary law is the law created by the parliament. And now you'd ask कि उसकी supremacy करने की क्यों importance है? Because जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रोसेस से पार्लियामेंट में पहुंचते हैं. उनके पास अवाम का मैंडेट होता है. अवाम का आपके पास मैंडेट ना हो, आपके पास इख्तियार ही नहीं है पॉलिटिकली एंड लीगली टू मेक लॉ विच आर गोइंग टू गवर्न द सिटीजन्स. सिटीजन को गवर्न करने की पहली शर्त यह है कि आपके पास अवाम का मैंडेट होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आपको हमने खुद ही बताया था कि उनके पास अगर वो डेमोक्रेटिकली पावर के अंदर है, henceforth they are allowed to make law. Supremacy of the ordinary law का ये तकाजा है कि parliamentarians must be elected democratically. आपके पास अगर अवाम का मैंडेट है तो ही आपके पास पावर है टू मेक लॉ. अगर आप अवाम के मैंडेट के बगैर आए हैं पार्लियामेंट में, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है टू मेक लॉ. सो रूल ऑफ लॉ का तकाजा यह है कि जो हम पे लॉ बना रहे हैं, दे मस्ट बी डेमोक्रेटिकली elected representatives of the citizens. So students, now we understood the 3 cardinal points presented by Sir A.V. Dicey pertaining to rule of law. Next up we have Professor F.A. von Hayek. इनका पूरा नाम है Frederick August von Hayek. Was an influential economist and political philosopher known for his contribution to economic theory and philosophy of liberalism. ये आप अगर फर्दर आप jurisprudence पढ़ेंगे अपने LLB के अंदर, then you'll understand कि political philosophy and also economic policy का कितना इफेक्ट होता है लॉ के ऊपर. एंड ये
चीजें आपस में कैसे इंटरट्वाइन एंड इंटरलिंक्ड हैं. He presented that he agreed with Dicey that the key component of rule of law is absence of arbitrary power. स्टूडेंट जहां पे आर्बिट्ररी पावर का वर्ड दिखेंगे आपके जेहन में डिक्टेटरशिप आना चाहिए. मेरे अर्ली लेक्चर्स में मैंने बताया कि डिक्टेटरशिप इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ. जहां पे लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहां पे डिक्टेटरशिप शुरू होती है एंड वाइस वर्सा. सो आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर is completely against the concept of rule of law. If rule of law is at north, then arbitrary exercise of power is at south. Arbitrary powers are relished by the parliament. अब यहाँ पे प्रोफेसर वॉन हायक कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट आर्बिट्ररी पावर्स एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जैसा कि आप स्टूडेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ, ये एबी डाइसी ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की जो पावर होनी चाहिए उसका लॉ मस्ट बी डीम एज सुप्रीम लॉ. हाउएवर प्रोफेसर वॉन हायक कह रहे हैं कि भाई अगर आर्बिट्ररी पावर्स नहीं एग्जिस्ट करती हैं तो पार्लियामेंट क्यों एक्सरसाइज करता है आर्बिट्ररी पावर्स, वो क्यों रेलिश कर रहा है. So students, you have to understand this. My particular opinion on this क्या कहते हैं point of Professor von Hayek is कि parliamentarians are democratically elected. उनके ऊपर एक constant check and balance होता है उनके law के ऊपर, courts का भी, and उससे भी आगे, I mean UK में तो नहीं होता मगर पाकिस्तान में होता है, मगर उससे भी आगे अवाम का उन पे check and balance रहता है. अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रोसेस से आता है उसको पता है कि मैंने 4 या 5 साल बाद जाके फिर से इस अवाम को मैंने फेस करना है. अगर मैंने ऐसा कोई कानून बनाया है जो कि पार्लियामेंट, जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, जो कि मेरे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट कर रहा है, 5 साल बाद ये लोग मुझे दोबारा इलेक्ट नहीं करेंगे और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो मेरे लॉ को फिर से चेंज कर सकती है. Henceforth, you can present this criticism on this point of Professor von Hayek. Furthermore, modern state is involved in regulating economic activities. इनका अपना एक पर्सनल ओपिनियन था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मस्ट बी रेगुलेट फ्रीली, उन पे कोई स्टेट का चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए, एंड यू कैन इधर एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट. जो लोग इसे एग्री करते हैं वो कहते हैं भाई जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं उनको फ्री रूम प्रोवाइड करना चाहिए टू रेगुलेट. जो लोग इनसे डिसएग्री करते हैं वो कहते हैं अगर हम उनको फ्री रूम प्रोवाइड कर दिया हमारी टैक्सेशन पे मसला आ सकता है, हमारी कुछ इलीगल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिस पे डीलिंग हो सकती है, या कुछ ऐसा तरीका हो सकता है डीलिंग का जहाँ पे लोगों के सिटीजन्स के राइट्स एब्रोगेट हो रहे हो, राइट्स उनके इन्फ्रिंज हो रहे हो. सो यू कैन ईदर डिसएग्री विद देम और एग्री विद देम. इनके जो 3 पॉइंट्स हैं. फर्दरमोर, last but not least, we have Joseph Raz. As you can see on screen, Joseph Raz, a prominent legal philosopher and a professor of philosophy of law at Oxford University. Ye currently, he is the only scholar, I believe, जो कि इस time पे. No, he has also passed away. लेकिन very recently passed away as compared to Professor Dicey and also Professor von Hayek. He said that rule of law is a way of controlling discretion rather than removing it. इनके मुताबिक आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर को आप रिमूव नहीं कर रहे हो बाय द प्रोसेस ऑफ रूल ऑफ लॉ, यू आर एक्चुअली रेगुलेटिंग इट. आपके पास डिक्टेटरशिप नहीं है मगर यू हैव अ पार्लियामेंट व्हिच एक्ट्स एज अ डिक्टेटर. वो जो चाहे वो कानून बनाती है, इट हैज द डेमोक्रेटिक पावर और वो इम्प्लीमेंट होएगा उनका कानून. थिंग इज आप इस पे इस तरह से क्रिटिसिज्म अपना प्रेजेंट करें कि क्या डिस्क्रेशन को रिमूव करना है द अल्टीमेट एम ऑफ रूल ऑफ लॉ, या डिस्क्रेशन को रेगुलेट करना है. द बॉडी विच इज मेकिंग लॉ मस्ट इंजॉय डिस्क्रेशन. अगर वो डिस्क्रेशन इंजॉय नहीं कर पा रही है तो वो लॉ किस तरह से बनाएगी, और वो लॉ इतना स्ट्रॉन्ग लॉ कैसे होगा जो कि हर किसी पे अप्लाई कर सकेगा. अगर उनके पास डिस्क्रेशन नहीं होगी देन फिर से लॉ सिर्फ गरीब पे अप्लाई करेगा या कुछ क्या कहते हैं हमारे जमाने के मुफलूकुल हाल लोगों पर अप्लाई करेगा, अमीर पे तो अप्लाई नहीं करेगा. सो डिस्क्रेशन मस्ट एग्जिस्ट एंड मस्ट बी एंजॉयड बाय द बॉडी व्हिच इज मेकिंग लॉ. यू कैन ईदर एग्री विद इट और डिसएग्री विद इट, मगर आप कुछ भी करें आपने अपना क्रिटिसिज्म अच्छी तरह से आपने प्रोवाइड करना है. Furthermore, he said that rule of law is an instrument used for guiding human behavior. ये थोड़ा सा उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास की है कि बेसिकली मेजरली पॉलिटिशियंस आप देखते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ का वर्ड यूज करते हैं. आम आवाम यानी तो रूल ऑफ लॉ सुनती है तो टीवी चैनल्स पे सुनती है व्हेन पॉलिटिशियंस आर डिबेटिंग, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं कि भाई आपके एक्शंस आर अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ.
वो उल्टा बोलते हैं आपके एक्शंस आर अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। सो इनका कहना ये है कि रूल ऑफ लॉ बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करने के लिए, कि जहाँ पे हमारे राइट्स पे कैप लगता है, दे सेड दिस इज कंप्लीटली इन लाइन विद द रूल ऑफ लॉ। I completely disagree with it, but you have to quote it, you have to present a good analysis on it, a good criticism on it. Furthermore, he gave 4 points on rule of law. उन्होंने इन सब से disagree करके अपने खुद के 4 points दिए. First one was clear rules and procedure for making laws. जो law बनाने का procedure है, that should be clear and should be unambiguous. उस पे कोई अंदर कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी ढका छुपा नहीं होना चाहिए, बंद कमरे में कानून नहीं बनना चाहिए, कानून सबके सामने बनना चाहिए. Furthermore, judicial independence must be guaranteed. अगर आप कानून बना रहे हैं और वो आम राय पे लग रहा है, कोई ऐसा कानून पार्लियामेंट बनाती जो कि उनके राइट्स को एब्रोगेट कर, उनके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, इस पे जुडिशियल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. एग्जीक्यूटिव के ऊपर जुडिशियल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. एंड वो तभी इफेक्टिव होगा जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती होगी. अगर आपकी जुडिशरी के हाथ बंधे होंगे, वो ऐसा कोई फैसला कर ही नहीं सकती जो कि अवाम के हक में होगा. उनके फैसले की होने या होने ना होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता. थर्ड, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड. कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. फोर्थ है, courts should have power to review how other principles are implemented. Courts के पास power होनी चाहिए how other constitutional principles are implemented, which are supremacy of parliament, क्या कहते हैं, judicial review की बात हो सकती है, rule of law की बात हो सकती है. कोर्ट के पास power होनी चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए. You can present your own criticism on this, के जैसे आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रोफेसर वॉन हायक ने बोला है कि भाई ज़्यादा पार्लियामेंट की पावर होनी चाहिए, मगर जोसेफ रैस कहते हैं कि डिस्क्रेशन पार्लियामेंट ज़्यादा इंजॉय कर रही है एज कम्पेयर टू डिस्क्रेशन को ख़त्म करने के. आप यहाँ पे इनके पॉइंट से डिसएग्रीमेंट बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज के डिस्क्रेशन, इनके मुताबिक डिस्क्रेशन ज़्यादा कोर्ट के पास आ रहा है. एंड कोर्ट्स के आप सबको पता है कि जजेस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं होते हैं. दे हैव द डेमोक्रेटिक डेफिसिट. उनके पास डेमोक्रेटिकली लॉ मेकिंग पावर नहीं होती. हैंसफोर्थ अगर आप उनको डिस्क्रेशन दे देंगे तो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ की इन्फ्रिंजमेंट आएगी. So student, this marks the end of our rule of law series. I hope आपको इन 2 lectures से rule of law की एक बहुत अच्छी and in-depth understanding हो गई होगी. To watch more lectures pertinent to A-levels law, go to Slate playlist में जाइए, वहाँ पे A-levels law का section बना हुआ है and हमारे lectures constantly upload हो रहे हैं. Thank you so much students. Allah Hafiz.